का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 19 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। थैंक यू जीसस। Through desire a man having separated himself seeketh and intermeddleth with all wisdom. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. देखो, no delight in understanding, मूर्ख लोगों को कोई भी आनंद नहीं होता है समझ की बातों के अंदर, बिल्कुल आनंद नहीं रहता है उनको। उनका हृदय सिर्फ ये देखता रहता है कि और कैसे मूर्खता की जाए, और कैसे सताया जाए, और कैसे इनको और बदनाम कैसे किया जाए, और किस प्रकार से इनका रेप्यूटेशन खराब कर दिया जाए, कितना और ज़्यादा बेइज्जत कर दिया जाए। बस ये रास्ते ढूंढने में लगा रहता है मूर्ख। ओके, समझदारी की बातों में उसको आनंद नहीं रहता है। मूर्ख नहीं बनना है। आज हमने बहुत अच्छे से समझना है वचनों को, ठीक है। When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. The words of a tale-bearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. Before destruction the heart of man is haughty, and before honor is humility. He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. The Lord causeth contentions to cease, and parteth between the mighty. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord. The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. A man that hath friends must shew himself friendly,
and there is a friend that sticketh closer than a brother. Chapter 19 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Also that the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth with his feet sinneth. But foolishness of man perverteth his way, and his heart fretteth against the Lord. Wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gifts. All the brethren of the poor do hate him. How much more do his friends go far from him? He persuadeth them with words, yet they are wanting to him. He that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule over princes. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as dew upon the grass. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth the commandment keepeth his own soul. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy later end. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again. Smite a scorner, and the simple will beware and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. He that wasteth his father
and chaseth away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge. An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth iniquity. Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools. नीति वचन 18 अध्याय और 19 अध्याय हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। ओ माय गॉड, सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जाल और उमंडने वाली नदी गहरा जाल और उमंडने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। और एक बार पढ़ेंगे 4 वचन। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जाल और उमंडने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। यानी शरीर का अवस्था मनुष्य आत्मा से संभालता है, ये है। ओके, लेकिन अगर आत्मा ही हार जाए तो फिर उसको संभालने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं, ऐसा कह रहा है ये। ओके, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंच जाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाले आकर उसे जांच लेता है।
चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से उभरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। हालेलुया। देखो, निर्धन हमेशा गिड़गिड़ करके बोलता है, दया आएगी ऐसे बातें करता है, लेकिन जो धनी रहता है कड़क भाषा इस्तेमाल करता है। वो हम धनी है प्रभु यीशु में, ओके, गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं है। 24 वचन हम पढ़ेंगे। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। 19 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हालेलुया। खराई से चलना है, ओके। अगर निर्धन है और फिर भी वो खराई में चल रहा है, सच्चे मन में चल रहा है, मूर्खता में नहीं रहेगा वो, ओके। वो उत्तम तरह का चलने वाला इंसान रहेगा। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं भी मानती हूँ। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चुक जाता है। उतावली नहीं करना है, शांति से सोचना है, शांति से रास्ता पकड़ना है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूढ़ता इसका कारण बनता है, ओके। मूढ़ता ये कारण बनता है। मनुष्य परमेश्वर से क्यों नाराज हो जाता है? मूढ़ता का स्पिरिट अटैक करता है। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है मूढ़ता। ये अवस्था नहीं है, ये आदत नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। मूढ़ता आत्मा है, ओके। जब आप यहोवा के बारे में चिढ़ने लगते हैं, मन ही मन गुस्सा होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं परमेश्वर से, तो ये स्पिरिट अटैक किया रहता है, ओके। और ये स्पिरिट आपका मार्ग टेढ़ा भी करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मूढ़ता ये स्पिरिट है, ये कोई अवस्था नहीं है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। ये बहुत प्यारा वचन है। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं। हम लोग जल्दी गुस्सा नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा छोड़ देंगे, ओके। उदारता है हमारे अंदर, ये स्पिरिट है, उदार स्पिरिट है। दानी पुरुष ये भी एक स्पिरिट है, ओके। ये स्पिरिचुअलिटी जिनके अंदर है, जो उदारता से रहता है, जो दानी पुरुष रहता है, ज़रूरी नहीं मसीही हो वो, लेकिन ये कैरेक्टर अगर उनके अंदर है, ये एटीट्यूड उनके अंदर है, उदार रहना, दानी रहना, तो उनका लाइफ में हमेशा आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी उनको आप मना सकते हैं, और बहुत जल्दी वो दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। ये जरूरी है वचन। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। 8 वचन से आगे पढ़ेंगे।
जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। हालेलुया। और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट हो जाता है होता है और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। ये भी एक स्पिरिट है। ओके, अगर किसी को आपको नष्ट करना है तो आपके साथ झूठ का आत्मा दे दिया जाए तो आप नष्ट होने के रास्ते पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को आप पकड़वा लेना चाहते हैं, मतलब आपका लाइफ में आपका कोई बात कोई तरह से आपको दोष में पकड़ना चाहता है तो आपके अंदर वो झूठ का आत्मा भेजेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दुष्ट जगत के लोग ऐसे आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हकीमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। मूर्ख को कभी भी सुख से रहना पसंद नहीं है। मूर्ख का कैरेक्टर है ये। ओके, उसको सुख से रहना ही अच्छा नहीं लगता है, फबता ही नहीं, उसको शोभा ही नहीं देता है। तो हकीमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबेगा। ओके, कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, देरी लगाता है वो किसी के ऊपर गुस्सा होने के लिए। वह चैन से देते रहता है, वचन को देखता रहता है, देखता रहता है और उस उबाल को वो रास्ता नहीं देता है और आगे बढ़ने का। वचन से उस उबाल को वो शांत करते रहता है। ठीक है, तो वो बुद्धिमान मनुष्य है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। जब सिर के ऊपर पानी जाने लगे, ऐसा बोलते हैं लोग, तब तक वह अपने शांति को पकड़े रहता है, लेकिन फिर बाद में उसको अपना क्रोध लाना निश्चित हो जाता है। विलंब से ही सही, लेकिन लेकर आना पड़ता है। और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। वेरी गुड। बुद्धिमान लोग देखो, बुद्धि जिसके पास है उसकी ये कैरेक्टर है, ये उसका गुण होता है। जल्दी से वो क्रोधित नहीं होता है और दूसरों के अपराध वो भुला देना एक अच्छा समय समझता है, वो एक अच्छा कैरेक्टर समझता है वो। राजा का क्रोध सिंह की गरजने के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओसे के तुल्य होती है। मैंने जितने आत्माओं के विषय में आपको बताया, मूढ़ता, झूठ की आत्मा है ना, जो दुष्टता के जगत यूज करते वो आत्माएं, झूठ बोलने वाली आत्माएं। ओके, ये सारी जो आत्माएं, ये आप समझ सकते हैं कि आपका कैरेक्टर आपके स्वभाव के विपरीत आ जाती है, परमेश्वर का गुण है उसके विरोध में आ जाती है। फिर ऐसे के विरोध में जब आप आवाज़ चढ़ा लेते हैं क्रोध के साथ, तो वो गर्जन के समान बन जाता है। याद रखना वो। ठीक है, वो सिंह की गर्जन के समान बन जाता है और उससे वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, भाग जाती है। लेकिन जब हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्नता से चलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा समय, सबको बहुत प्यारा समय लगता है। इसके लिए लोग बोलते हैं ईश्वरीयता के गुणों में ही बने रहो। बहुत मीठा मीठा गुण रहता है वो, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा सा समय रहता है वो। इसके लिए लोग बोलते हैं वैसे रहो। तो दुष्टता के जगत के लोग वैसे रहने नहीं देते हैं। वो गलत आत्माओं को भेज कर, जैसे मूढ़ता की आत्मा, मूर्खता की आत्मा, झूठ की आत्मा, ऐसे आत्माओं को भेज कर वो हमारे एटीट्यूड को, हमारे स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं। फिर हम वचन से उनको शांत करते रहते हैं। लेकिन फिर जब समय आ जाता है कि बस अब वो मान नहीं रहे, तो फिर हमको क्रोध उठाना पड़ता है और वो गर्जन के समान निकलता है। ओके, और फिर वहाँ पर हमारा जो बिहेव्स दिखाई देता है, वो डरावना बिहेव्स दिखाई देता है। ओके तो वो प्रसन्नता का समय जब रहता है तब बहुत प्यारा प्यारा लगता है,
लेकिन जब वॉरफेयर करने का समय आ जाता है तो डरावना लग जाता है। ओके। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है। ओके। कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, कुछ भी आदतें हैं, कैसे भी चल रहा है जिंदगी, नाश हो जाएंगे आप। ओके। व्यर्थ जाएंगे, ऐसे नहीं होना है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ न कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। ओके। जब तक आशा है, जब तक आपको लगता है कोई सुधर सकता है, जब तक आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा और कठोरता व्यवहार दिखाऊं, अगर इसको और थोड़ा मैं परेशान कर दूं, यानी परेशान नहीं, दैट मीन्स अगर और ज़्यादा इसको सही रास्ता दिखा दूं कि ये ऐसे नहीं करना है, तो आपने वो आशा को उपयोग करना है। उस तरह का समय आपने व्यर्थ नहीं जाने देना है। फिर देखना है कि शायद से कोई मान भी जाए कि गलत काम करने से वो रोक लिया जाएगा, नहीं तो उसके लिए गलत काम करने का अंजाम उसको लेना पड़ेगा। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तो उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। देखो, अब ये वचन हम सब के लिए है। हम सारे वचन पढ़ते हुए चल रहे हैं, हमको कुछ मिल रहा है, तो हमने अब ये ग्रहण करना है, ये सीखी हुई बातों को, वचन को ग्रहण करना है और बड़े लंबे समय तक, अनंत काल तक हमने बुद्धिमान ठहरे रहना है। 21 वचन, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। अगर आपके पास धन नहीं है लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। ओके। और कृपा करने वाला स्वभाव है आपके अंदर, तो आपको कोई भी हमेशा चाहेगा। ओके। आपसे प्रेम करेगा, आपसे प्यार करेगा। कृपा मनुष्यों का मन जीत लेता है, मनुष्यों से आदर जीत लेता है। इसके लिए कृपा को आप कभी भी अलग नहीं करना है अपने स्वभाव में से। आपको लोग चाहते हैं जब आप कृपा करते हैं तो, ठीक है। और योग्यता है वो आपकी, अगर आप कृपा करने वाले इंसान है तो। 23 वचन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। देखो, हमेशा रोज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स बना। इस वचन के आधार से हमारी प्रार्थना रहती है। हमें ऑर्डरलीनेस मिला, ये वचन के आधार से वो प्रार्थनाएं रहती है। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार,
इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। ठट्टा के लिए, मारने के लिए बोला है, समझ वाले के लिए डांटने के लिए बोला है ना। हमने ऐसे कहावत सुनते हैं ना दुनिया में, कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बातों से जाते हैं, लेकिन कुछ भूत ऐसे होते हैं जो लातों से जाते हैं। तो ठट्ठा करने वाले जो आत्माएं होती है वो आपको बड़ा वॉयलेंट, बड़ा उग्रता से आपको उसका सामना करना चाहिए। और कोई समझदार ऐसी कोई आत्मा है, समझ सकता है वो, तो उसे डांट कर भगा देना है। जो समझ वाले को डांट, यानी समझ सकता है ऐसे को आप बात करके सुधार सकते हैं। लेकिन अगर ठट्टा करने वाला है तो उसको फटकारना पड़ता है, वॉयलेंट होना पड़ता है, उसके सामने एग्रेसिव होना पड़ता है। ओके, ये देखो, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। बहुत ध्यान देना है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े होते हैं। मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है। ओके। और अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। 29 वचन, ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े है। तो आपको मूर्खों के सामने वायलेंट होना पड़ता है, आप बड़े कड़े तरह से उनका सामना करना पड़ता है, ठट्ठों को पनिश करना पड़ता है। वो इतने ज़िद्दी होते हैं, ठट्ठा करने वाले इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो फिर भी नहीं मानते हैं। उनको पहले तो मारने के लिए कहा है 25 वचन में, फिर बाद में 29 वचन में उनको पनिश करने के लिए भी कहा है। ओके। और मूर्खों के लिए बड़े कड़क तरीके से उनके साथ बर्ताव करना पड़ता है। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 21 चैप्टर 10 वर्स से 19 वर्स। 1 सैमुअल 25 चैप्टर। 2 इयर्स 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 10 वचन से 19 वचन तक। पहले शमूएल की पत्री 25 अध्याय। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर वचनों को सुधार लाने के लिए, मूर्खता को हटाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा मन बुद्धिमानी बनाएगा, वो हमारे कैरेक्टर चेंज करेगा और हम बहुत कुछ प्राप्त करने के रास्ते, परमेश्वर चाहता है उस मंजिल में पहुंचने के रास्ते प्राप्त करेंगे। ऐसा परमेश्वर हमको करना चाहता है, हमने उसका लाभ उठाना है। 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढल चुका इंसान हम परमेश्वर के लिए उपयोग का बर्तन होकर आएंगे और परमेश्वर हमें बहुत बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। बहुत प्यारा परमेश्वर है हमारा, उसके समान वो हमको बनाना चाहता है। ओके, हमने वैसे बनना है और जैसे ही परमेश्वर ये करने के लिए कहता है तो वैसे हमको अनुग्रह का आत्मा उसने दिया है ताकि हम ये बोझ मानते हुए ना करें, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो हमसे, बल्कि हम मन से आनंद के साथ, शांत मन और बहुत स्थिरता के साथ वचनों को सीख सके और ग्रहण कर सके। ऐसा अनुग्रह का आत्मा हमको दिया है उसने, सदा के लिए हमारे अंदर वो रहने के लिए आया है। हमने ऐसे प्रकार से परमेश्वर ने दिया हुआ जो अनुग्रह का आत्मा है हमारे अंदर, उसका हमने लाभ उठाना है।
प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तू अपने वचनों को हमसे अलग होने मत दे खुदा। हमसे ओझल होकर हम निर्बुद्धियों के बीच ना ठहरे खुदा, ना मूर्खों के बीच हम गिनती किए जाए। मेरे खुदा, हमें ठट्टों में उड़ाने वाले मत बना, हमें मूढ़ आत्माओं से बचा, झूठ बोलने वाले शब्दों से हमें बचा और हमें आज़ाद रख। सर्वशक्तिमान तेरे बुद्धिमानी आत्मा से हमें चला, हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में, मंजिल में पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर चाहता है उस ऑर्डरलीनेस में तैयार कर। ये वचन खाली ना रहे, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य उतर कर आए और हमारे जीवन के हर एक हिस्से फिट एंड फिक्स हो जाए, ऑर्डरलीनेस में आ जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।